Hello everyone. Now the next chapter that we are going to start is chapter number 6, plant water relation. In this chapter basically we are going to try and understand how do the plants absorb the water, and there are different theories behind it. So how the plant gets the required water, because water is very essential for the plant to survive and to do photosynthesis. Then water transport exactly कैसे होता है उसका पूरा mechanism, theories, and plus we will also study something related to food transport, because water के ही रिलेशन में फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द प्लांट बॉडी. तो उसके रिलेशन में जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सब भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे. सो नाउ बेसिकली we all know the plants they absorb the water from the soil with the help of the roots. We have studied basic structure of root in 11th standard morphology chapter, तो we will be again going through it. And रूट्स की वजह से एब्जॉर्ब होता है. फिर वी नो देर आर वैस्कुलर बंडल्स इनसाइड द प्लांट्स इन एंजियोस्पर्म्स. स्पेसिफिकली दिस concept is applicable. Then angiosperms में we know there is xylem and phloem inside the vascular bundle. Xylem is meant to conduct water and phloem is meant to conduct food. तो ये दोनों का स्ट्रक्चर हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में देख लिया था कि जाइलम में देर आर वेसल्स, ट्रकेट्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. फ्लोएम में देर आर सीव्स, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड यू हैव फ्लोएम फाइबर्स. तो ये स्ट्रक्चर हम लोग जाइलम और फ्लोएम का 11th में पढ़ चुके हैं. अभी उनके अंदर मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, फिजिकल फोर्सेस क्या है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो नाउ यहाँ पे कैन यू रिकॉल में उन्होंने पूछा है विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो वी ऑल नो the parts of the plant body: root, stem, leaves, flowers, fruits, etc. Then what are the functions of the various parts of the plant body? The root for absorption of water and minerals, roots are for anchoring. Okay. Then the stem, it is giving rise to the what we say the flower branches, leaves, flowers and fruits. The leaves का function photosynthesis है. Flower का function is basically reproduction, and the seed is for continuation of that plant, so it is going to germinate and bring up a new plant. Then fruit is meant to attract the birds and the animals so that they eat and they disperse the seed. Then we know कि stem के अंदर xylem phloem है for conduction food and water. So in short we know what is the anatomy of the plant and the basic functions of the parts. Okay. Then which plant tissue are involved in transport of water and minerals? तो if we talk about water and minerals, तो minerals generally water में dissolve होके ही transport होते हैं and they are present in the soil, both water and minerals. तो वहाँ से absorb होते हैं. तो root is involved in absorption. root tissues जो भी है, जो भी cells है, you have the root hairs and all those things, and then finally the xylem will be conducting it upwards towards the leaves, which because water is required for photosynthesis. Then use your brain power उन्होंने बोला है. You know that we need a water pump to lift water at the top of the buildings. That is true, क्योंकि जो BMC से पानी आता है वो नीचे के वाटर टैंक्स में स्टोर होता है. फिर आजकल बिल्डिंग्स तो वेरी टॉल होती है, 15 floors, 20 floors एंड ऑल. इवन इफ द बिल्डिंग इज ऑफ 3 floors और वॉट एवर, तो वाटर हैज़ टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड्स टिल द टॉप फ्लोर. सो वो पानी कैसे ऊपर जाता है? बिकॉज देयर इज अ मोटर पम्प. वो पम्प से वो पानी पुश किया जाता है अपवर्ड्स. ओके. सो हाउ डज प्लांट लिफ्ट द वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू द कैनोपी? कैनोपी इसका टॉप पार्ट होता है विदाउट एनी पंप. प्लांट में तो कोई पंप नहीं है, फिर भी पानी नीचे से ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है. तो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो उसके लिए जो भी थियोरीज है, लाइक यू हैव द रूट प्रेशर थियोरी, द ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी. उसमें से आई थिंक सो रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल तुम लोग स्कूल में पढ़ चुके हो, तो उसको वापस रिपीट किया है. प्लस दूसरी जो थियोरीज पुट फॉरवर्ड की गई है उनके बारे में अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. देन मतलब those are the possible physical forces which are helping to lift the water up.
till the canopy of the plant. Okay, and the basic forces that you're going to study over here is the cohesion force and the adhesion force. If I have to talk about these two forces, the basic concept is what is cohesion is attraction between the same molecules and adhesion is attraction between different molecules. Okay, तो these are the forces. हम लोग इसके बारे में भी आगे देखेंगे. Then next they have asked is plants obtain variety of substances like water, mineral, nutrients, food and gases like O2 and CO2. ये सब उनको सराउंडिंग से मिलता है. Where do they get water and minerals? From the soil. Nutrients में अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स ही है, सारे के सारे सॉइल में से नहीं आते हैं. कुछ उनको वाटर के साथ मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया या फंगस की वजह से मिलते हैं, एंड कुछ एयर में से आ रहा है ना, जैसे नाइट्रोजन हवा से आता है लेकिन सॉइल से मिक्स होके थ्रू ही जाता है. देन यू हैव they are making food, the organic molecules they make it themselves. Then gases O2 CO2 का exchange plant में होता ही रहता है along with their surrounding. तो प्रोडक्टिविटी इन प्लांट इज़ मेनली अफेक्टेड बाय द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. ओके, तो प्लांट का प्रोडक्टिविटी क्या है? फोटोसिंथेसिस करना और बायोमास बना के रखना. तो ये प्रोडक्टिविटी कब अफेक्ट होएगा? अगर पानी नहीं मिलेगा तो इट विल गेट अफेक्टेड. वैसे तो फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक ऑफ क्लोरोफिल. ये सब हम एक्सपेरिमेंट्स स्कूल में भी पढ़ चुके हैं. तो सेम वे वाटर से तो ऑब्वियसली इट विल गेट अफेक्टेड. वाटर इज कंसिडर्ड एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ. एलिक्सियर मतलब क्या है? इट्स लाइक अ मैजिकल पोशन. मतलब एक मेडिकल सोल्यूशन की तरह है जो बहुत ही ज़रूरी है लेकिन लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए. वी ऑल नो लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड इन वाटर. ओके, विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल. वाटर कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द प्लांट सेल एंड टिश्यूज. तो जैसे हमारे बॉडी में भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इवन इन प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर होता है. वाटर हेल्प्स द सेल टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप. नाउ व्हाट इज टर्जिडिटी? वो स्वलन स्टेट में रहना. तो वो सेल का स्वेलअप होना और फिर फ्लैट हो जाना, ये सब मूवमेंट्स ऑफ सेल्स है. तो ये सब भी क्यों पॉसिबल है? और सेल का शेप मेंटेन रहता है बिकॉज वो टर्जिड है. टर्जिड मतलब उसका अंदर फ्लूइड्स है और उसका टेंशन मेंटेन है, तो उसका शेप मेंटेन रहेगा. ये सब कौन करता है सेल्स के लिए? वाटर. इट शोज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच इट हैज़ ग्रेट बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस. तो देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. तो ये यहाँ से हमको क्लियरली आइडिया आता है कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस उसका मतलब लाइफ लिविंग क्रीचर्स के लिए वाटर का इतना इम्पॉर्टेंस क्यों है. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ water. Now if I talk about the properties of water, we all know water is at in the liquid form at room temperature and उसमें maximum चीज़ें soluble होती है. So it is a very good solvent for most of the solutes. It is very inert. It is not going to react with anything. Inert inorganic compound है. एंड उसका pH कैसे होता है? न्यूट्रल होता है. इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन इन द प्योर फॉर्म. ओके, ऑब्वियसली उसमें कुछ डिजॉल्व हो जाता है तो इट कैन बिकम एसिडिक और इट कैन बिकम अल्कलाइन. देन वाटर इज़ अ वेरी गुड ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स. सिंस उसका pH न्यूट्रल है, इट इज़ इनर्ट नॉट रिएक्टिंग, तो वो चीज़ों को अपने साथ डिजॉल्व करके फूड मिनरल्स को आराम से अपने साथ डिजॉल्व करके कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है विदाउट ऑल्टरिंग देयर क्वालिटीज़. देन इट इज़ अ वेरी गुड एक्वस मीडियम, मतलब लिक्विड मीडियम है फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस. इनसाइड द सेल जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो वाटर मीडियम में ही हो रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स they get activated in the presence of water. Then it is a very essential raw material for photosynthesis. I told you the raw material for photosynthesis, we all know it is sunlight, chlorophyll and water and carbon dioxide. तो one of the essential raw materials है. इसमें ये चार में से एक भी मिसिंग रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है. तो इवन इफ वाटर इज मिसिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस एंड पूरा लाइफ ऑन अर्थ इज कनेक्टेड टू फोटोसिंथेसिस. वी हैव स्टडीड द फूड चेन. देन वाटर का दूसरा क्वालिटीज़ क्या है? तो इट हैज़ अ high specific heat. Now what do you mean by specific heat? So it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree. This is the basic definition of specific heat. I repeat again, specific heat मतलब क्या है? It is the amount of heat जो लगता है to raise the या to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. तो वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सिंपली इट टेक्स मोर एनर्जी. उसको बहुत ज़्यादा हीट लगेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस. देन
उसका हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है. अगेन द हीट ऑफ वेपराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू टर्न 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर. ओके, विदाउट अ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड. मतलब लिक्विड का टेम्परेचर बिना डिस्टर्ब किए जितना भी हीट लगता है टू टर्न दैट लिक्विड इनटू वेपर. तो ये वाटर का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. एंड नेक्स्ट इज हाई हीट ऑफ फ्यूजन है. हीट ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ गिवन सब्सटेंस at its melting point temperature. Also, it also represents the amount of energy given up when a given mass of liquid solidifies. तो अगर सॉलिड को मेल्ट करते हो तो उसका जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको मेल्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन. लिक्विड के केस में व्हाट इज द हीट ऑफ फ्यूजन इज जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा टू कन्वर्ट दैट लिक्विड इनटू अ सॉलिड. Okay, that is known as the heat of fusion. Water, for example, उसका heat of fusion is 80 calories per gram होता है. Then so you can see इन सब qualities की वजह से it acts as a thermal buffer. Now what do you mean by thermal buffer? Any element जो reduce करता है heating and cooling load को on any other space, मतलब किसी और चीज़ का, तो that is it is like acting like a thermal buffer. तो वाटर इज़ लाइक अ टेम्परेचर बफर. ओके, इसका मतलब क्या होता है? इट कैन रेजिस्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर मोर देन एनी अदर लिक्विड्स. मतलब इमीडिएटली वो टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा. इट विल रेजिस्ट द चेंजेस. सो इसीलिए उसको टेम्परेचर बफर बोला है. देन क्योंकि जब भी तुम हीट प्रोवाइड करते हो, मतलब उसको वो गर्मी पहुंचेगी उस तक, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इट डज नॉट अलाउ दैट हीट टू अफेक्ट द थिंग्स. इसीलिए उसको थर्मल बफर बोला है. देन नेक्स्ट टू दैट इज ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वाटर की, ये क्यों है? बिकॉज इट दीज आर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. ना बेसिकली व्हाट आर दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स? तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. Okay, so there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom in a molecule of water. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डेड रहता है. तो वो कैसे बॉन्ड होता है? इट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर बॉन्डेड. एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है एंड वो बॉन्ड्स बना देता है. सो ये दिस इज़ व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी बॉक्स में उन्होंने पूछा है व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो आई टोल्ड यू. देन व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया. देन व्हाट आर एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स, वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करते हुए बोला कि एडिसिव फोर्स क्या होता है. इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड व्हाट इज अ कोहेसिव फोर्स? इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स. ओके, या सिमिलर सब्सटेंसेस. तो जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड हो रहा है तो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स. बट जब वाटर किसी और सरफेस से अटैच हो रहा है तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दैट सरफेस मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एन एडिसिव फोर्स. ठीक है, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गुड एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वाटर का ये दोनों फोर्सेस अच्छा होता है ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन? इट इज द टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ liquid. Okay, because of the attraction of the particles on the surface, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है. तो वाटर का सपोज आई हैव टू टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. तो वाटर का टॉप मोस्ट लेयर जो है उधर ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उसका ऊपर का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है एंड दैट इज व्हाट इज द सरफेस टेंशन. ठीक है, सरफेस टेंशन ये एक्चुअली लिक्विड सरफेसेस की टेंडेंसी होती है सरफेस की टू श्रिंक एंड मिनिमाइज द सरफेस एरिया पॉसिबली. तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है ना, वो वाटर सरफेस थोड़ा टाइट रहता है, जिसकी वजह से यू कैन सी सम इंसेक्ट्स दे कैन ईजिली वॉक ऑन वाटर बिकॉज दे कैन फ्लोट इन शॉर्ट. मतलब देन नेक्स्ट टू दैट इज सो वाटर हैज़ हाई सरफेस टेंशन, उसका एडिसिव कोहेसिव फोर्स भी हाई है. तो इसकी वजह से वो ईजीली कैपिलरीज में, मतलब कैपिलरीज आर लाइक फाइन व्हाट वी से पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर वो
ऊपर चढ़ सकता है। ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर दोनों के बीच में कोई फोर्सेस है, तो एक दूसरे को टाइटली बॉन्डेड रखते हैं। कैपिलरी ट्यूब के सरफेस के साथ वो एडिसिव फोर्स दिखाएगा, तो उससे अच्छी तरह से अटैच रहेगा। एंड इट विल आगे मूव कैसे होता है, तो दूसरे फिजिकल फोर्सेस उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। वो हम सारे फिजिकल फोर्स देखने वाले हैं, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल एक्सेट्रा। सो इट इज़ देयरफॉर वेरी सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल दैट कनेक्ट्स द फिजिकल वर्ल्ड विद बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसा लाइन दिया है वाटर के बारे में, बराबर है। तो वाटर इज कनेक्टिंग द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी फोर्सेस हैं, उन सबको बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस करवाने में हेल्प करवाने के लिए एक मीडियम है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट।